to know Him more. So this is a wonderful privilege to all of us. Having said that, thank you so much, the youth pastor of this church, who is also the service leader. Thank you, ये समय के लिए. And I do honor the presence of the elders here, our respected pastor, former pastor, senior pastor, secretary, and all of you. जितना लोग यहाँ FCRC का youth leader है, district का है, and my friend of mine, हमारा पीटर सर है, to all of you, आप सबका मौजूदगी, यहाँ माँ लोग भी दिखाई दे रहा है, कुछ माँ लीडर्स लोग भी है, सबका प्रेजेंस को हम बहुत सम्मान कर रहे हैं. Praise the Lord. आप लोग आज ही आया होगा यहाँ पे, हम तो लास्ट वीक से है यहाँ में. Since last week we are here. Of course वो इस बीच में नहीं था होगा, लेकिन शुरू से है. तो बाइबल क्लास हुआ है, या में सेमिनार, आप लोग प्रोग्राम में देखा था, आगे जब प्रोजेक्ट हुआ है तो एक दिन का सेमिनार हुआ है यहाँ में, बाइबल सेमिनार. तब से हम क्लास लेके बैठ रहे हैं, तो वहाँ 2 क्लास लिया था. एंड आई रियली अप्रिशिएट ये चर्च का यूथ लीडर्स लोगों को क्रिएटिविटी के लिए, और बहुत बहुत जेन्युइनली इन लोग जो काम करता है ना, दैट्स रियली वंडरफुल, रियली अप्रिशिएबल. यू नो, सो मैच्योर्ड इन द वे दे डू थिंग्स. यू नो, ऐसा इन लोग अरेंज करता है, ऐसा केयरफुली. इसीलिए एक ईश्वर वचन भी अच्छा से सुनना है बोल के ट्रेनिंग भी अलग से रखा है. उसमें कोई ऐसा अदर प्रोग्राम्स नहीं होगा, कुछ नहीं है. ओनली सेमिनार है, बाइबल ट्रेनिंग है, ऐसा है. उसका बाद फिर यू नो wonderfully you have categorized all the programs. It's really appreciated. आज हम प्रेयर का साथ आया है. I sincerely believe, मेरा पूरा मन से, I'm 100%, हम पूरा कॉन्फिडेंट है that God will speak to you. परमेश्वर आपको बात करेगा. ये हम बहुत एकदम इमोशन से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन just having faith that I'm confident enough कि ईश्वर आप लोगों को बात करेगा. Because as his servant, उसका प्रभु का दास होने के नाते, और as someone who teaches and preaches from the Bible, I know the character of God. God never makes mistakes. परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है. अगर वो ये प्रोग्राम में आप लोगों को बुलाया है, there must be a reason. और परमेश्वर जो टाइम पास भी नहीं करता है, that's not the attributes of God. परमेश्वर का क्वालिटी नहीं है जो वो मजाक करता है, या वो ऐसा समय आओ एंजॉय करो, ऐसा. दैट्स नॉट लाइक दिस. देयर इज ए पर्पस. एंड मेरा प्रार्थना ये होगा कि जितना लोग आए पुलपिट में जो है टिल द लास्ट, और हम रिक्वेस्ट करेगा जो बाहर में उन लोग भी, हम लोग आधा घंटा जैसे समय बिताएगा, प्लीज बी रिसेप्टिव टू गॉड्स वर्ड. परमेश्वर का वचन आपको बात कर रहा है, प्लीज दूसरा के लिए भी मत सुनिए. गॉड इज स्पीकिंग टू यू, ही इज इंटरेस्टेड इन यू. आपको लेके इंटरेस्ट लो रहा है. सो विथ मच फेथ एंड प्रेयर आई हैव कम हियर. तो हम एक प्रार्थना का साथ शुरू करेगा. प्लीज मेरा साथ 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलिए. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ the heavens and the earth, Almighty God, you are awesome. You are so amazing. Our words are too less to describe your goodness, Lord. You are so wonderful, so beautiful, Lord. Lord, at this moment, with much humility in my heart, Lord, with all humility, Lord, I acknowledge that it is all because of your grace alone that we are able to come here and to call unto your name, Lord. We do not deserve anything from you, but your grace has made it possible for all of us. And I sincerely believe that, Lord, you are going to bless us. You will speak to us individually, Lord. I pray that may the power of the Holy Spirit empower your servant so that I will
deliver your word accurately and effectively to your chosen people, Lord. And may your Holy Spirit empower every individual seated here to have a receptive heart, so that everyone will receive your word with humility and be blessed, Lord. And Lord, it is my prayer that at the end of everything, Lord, may you take all the glory and honor, Lord. May you be the center of everything we say here, we do here, Lord. You be glorified in and through us, in and through this program, Lord, in and through this time, in this moment, Lord. Thank you, God. I believe, Holy Spirit. हमारा यूथ पास्टर सर जो आप लोगों को पढ़ दिया है, रोमन्स चैप्टर 13, 11 को लिखा है। लेकिन यहाँ में जो बातचीत चल रहा है 11 से नहीं है, बहुत आगे से शुरू हुआ है और ख़त्म भी 11 तक नहीं है, 14 तक जाएगा ये। और ये बहुत अच्छा बात, इतना सुंदर, और हम बहुत विथ प्रेयर आई हैव स्टार्ट। बिफोर दैट एक ऑब्जर्वेशन शेयर करेगा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, एनोनिमस बोलेगा अभी के लिए, हम लोगों का सीआरसी फैमिली में बहुत यूथ्स, बहुत इफेक्टिव यूथ लीडर्स, बहुत इफेक्टिव माँ लीडर्स लोग भी निकलता है, चर्च में भी लीडर्स निकलता है, बहुत अच्छा लीड करने वाला लोग भी निकलता है। The only problem we see is the lack of consistency. Consistent नहीं होता है, इसीलिए बहुत लोगों को हम लोग एक समय में बहुत जोर से वर्शिप करते हुए देखता है, बहुत अच्छा से लीड करते हुए देखता है, बहुत अच्छा से लीडरशिप का रोल निभाते हुए देखता है, लेकिन कुछ दिन का बाद, कुछ साल का बाद, आफ्टर अ डिकेड, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 5 साल के बाद, आई हैव विटनेस्ड, इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग देखता है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो जाता है, उसका लैंग्वेज भी चेंज हो गया, द वे ही टॉक्स, एवरीथिंग कहाँ चला गया वो यूथ लोग जो यीशु मसीह के लिए मर मिटने का बात करता था। तो हम में से बहुत से लोग जो है, हम लोग बहुत सिचुएशनल बेस होते, माहौल अच्छा होते समय में हम लोग ठीक रहता है। ईश्वर के लिए जब माहौल ठीक होगा, जब आपको कोई यूज करने वाला होगा, आपको कहीं लीड करने का जगह मिला है, चर्च में लीडरशिप का मौका मिला है, लीडर लोग आपको इस्तेमाल किया है, तब तक ठीक ही होता है। लेकिन एक पल आ जाता है, आप अकेला हो जाता है, और कभी कभी आपको दूसरा लोग पूछता है, चर्च वाला पूछना बंद हो गया, दूसरा दोस्त लोग पूछता है, दूसरा से अट्रैक्शन है आने शुरू होता है, और रास्ता में चला जाता है। मेरा कंसर्न ये है, हम एक ईश्वर दास है, बाइबल कॉलेज में हम फॉर फ्यू इयर्स आई हैव बीन देयर, बहुत करीब से ये सब को हम सेंस करके बोल रहे हैं। मेरा सिंसियर प्रेयर और मेरा होप एक ये है ना, विश ऐसा है कि हम लोग में ऐसा यूथ लोग आज चर्च में निकलना है, आज ये जनरेशन में, हु रियली लव्स द लॉर्ड, जो सच में यीशु मसीह को प्यार करता है, इसलिए चर्च आता है ना, नॉट बिकॉज कि हमको लीडरशिप में रखा इसलिए नहीं है, इसीलिए नहीं कि हम प्रेजेंट वर्शिप का टीम में है, नो, नॉट बिकॉज आई एम द इंचार्ज ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, नो, कोई भी नहीं होने से, आई लव गॉड सो आई कम चर्च, आई कम टू द चर्च, आई विश मेरा प्रेयर है आया ऐसा। इसीलिए कोई बोला है, प्लीज आज थोड़ा नेगेटिव बात से शुरू हो रहा है, बात से जो खराब मत पाइए, जस्ट ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा है। कोई बोला है, आज चर्च में जाके देखिए, आपको बहुत कम और लड़का मिलेगा, औरत ज्यादा मिलेगा। लड़का में कम जितना लोग आता है, उसको भी अच्छा से जाके देखिए, उन लोग कुछ लीडरशिप पोजीशन में है, इसलिए भी आ रहा है कोई लोग।
तो इसीलिए लीडरशिप टेन्योर खत्म होने के बाद चर्च में नहीं आएगा कोई लोग, माँ लोग भी कोई लोग ऐसे होगा। जब तक वो लीडर में तब तक होगा, जब तक वो ऑर्गेनाइजर वो अपना प्रोग्राम कराते समय वो ही सबसे एक्टिव होगा। आफ्टर दैट और बहुत माँ लोग भी इसीलिए चर्च आता है, सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एज ए ईश्वर दास हम रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। बहुत माँ लोग भी इसीलिए चर्च नहीं आता है कि वो यीशु मसीह को प्यार करता है, इसलिए नहीं, सेल्फिश है। कैसा सेल्फिश है? हम इसलिए चर्च जाते हैं मेरा बच्चा का प्रोटेक्शन के लिए, मेरा घर का प्रोटेक्शन के लिए। इसका सेंटर जो यीशु मसीह ने, अभी भी आपका घर ही है, अभी तक अच्छा डिसाइपल नहीं हुआ है, याद रखिए। हाँ, बहुत लोग इसको राइट लगता है सुनने के लिए, नहीं, सुनने में सिर्फ राइट है, एक्चुअली में इसका सेंटर जो अभी तक यीशु मसीह नहीं है आपका लाइफ में, आपका लाइफ जो ईश्वर काम नहीं करने से हम लाइफ शॉर्ट होगा, इसलिए ईश्वर काम कर रहा है। तब तो आप ईश्वर को प्यार नहीं कर रहे, आपका लाइफ को प्यार कर रहा है। ईश्वर काम नहीं करने से ना हम बहुत बीमार होता है। सो आई सर्व गॉड। आप बीमार होना नहीं चाहते, दैट इज द पॉइंट। कहाँ है ईश्वर? वेयर इज जीसस? तब तो यीशु मसीह कहाँ है? इसीलिए आई विश हम लोगों का चर्चेस लोग में सच में जेन्युइन डिसाइपल्स लोग निकालना है, वन हु ट्रूली लव्स द लॉर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आप हमको लीडरशिप में रखो या ना रखो, कोई यूज करो या ना करो, आई विल सर्व द लॉर्ड। कोई बोला है, जैसे वो एक गाना, इंग्लिश गाना का लिरिक्स, आई रियली लाइक दैट। वहां में कहता है कि ईश्वर आपका घर में, आपका मंदिर में नौकर बनना हम पसंद करेगा, ये दुनिया में राजा बनने से ज्यादा होगा। ये दुनिया में 1000 दिन जीने से ज्यादा हम आपका करीब में हम एक दिन जीना पसंद करेगा। हाउ व्हाट ए वंडरफुल हार्ट, वन हु ट्रूली लव्स द लॉर्ड, a genuine one who truly loves the Lord। क्यों हम लोगों का पास नहीं निकाल सक रहा है? आई विश हम लोगों का पास ऐसा बिलीवर। हम पीटीसी चर्च में उस दिन भी स्पीकर, उसमें भी हम बोला है ना ये बात, हम बहुत अच्छा लगा है। वो एक फुल टाइम वर्कर है दूसरा डिनोमिनेशन का, वो उसका प्रीचिंग में उसका बात को सुन के वो बोला है, जब वो यीशु मसीह के बारे में प्रीचिंग करे, वो बोला है आई नो जीसस। हम जानते हैं तो यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम उसको छूते हैं, देखता है, सुनता है, हम जानता है, तो आई नो जीसस। इतना पर्सनल बनाया यीशु मसीह, और वो खबर नहीं दे रहा है दूसरा को यीशु मसीह ऐसा बोलता है दे यीशु, इट्स नॉट सेइंग लाइक दिस, आई नो हिम, आई नो हिम। क्योंकि हम इसको बहुत प्यार करता है तो ना, इसलिए मेरा हम तो आई रियली नो हिम, आई नो हिम। ये यीशु मसीह को आपको बता रहे हैं हम ना। आई विश हम लोगों का चर्च का, आज चर्च में जो यूथ मिनिस्ट्री करता है, चर्च में जो यूथ का मेंबर होता है, चर्च का जनरल में होता है, वुमेन में होता है, आई विश हम लोगों का लोग भी ऐसा बोल सकेगा, आई नो यू जीसस। आपको हम जानते हैं तो आई नो यू पर्सनली, आई नो यू, आई लव यू, सो आई सर्व यू। बीमार नहीं होने से भी आपको सेवा करेगा, बीमार का समय में भी आपको हम सेवा करेगा, हर वक्त हम आपको सेवा करेगा। सेवा मेरा पास ठीक होता है बोल के हम सेवा आपको नहीं करता है, आप बहुत बड़ा है इसलिए हम सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हैविंग सेड दिस, हम टेक्स्ट में आएगा, ये वर्स में आएगा, ये वर्स को हम तोड़ मरोड़ के बताएगा, इसका फुल मीनिंग पूरा शायद कवर नहीं करेगा, लेकिन जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट्स लोग को छुएगा हम लोग। जब पॉल ये बात को बोला है बाइबल में, रोमन चैप्टर 13 में, ये बात शुरुआत रोमन चैप्टर 12 से शुरू होता है। रोमन चैप्टर 1 से लेके 11 तक पॉल जो है, हम लोग कितना पापी है और ये पाप से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने पे होता है, ये बात को बताया, ये ब्लेसिंग को बताया है। उसका बाद 12 से
बिलीवर का रिस्पॉन्सिबल को बता रहा है। अभी बिलीवर प्रैक्टिकली आप कैसा एक्सप्रेस करेगा अभी एज ए रिसिपिएंट ऑफ दिस ब्लेसिंग। चैप्टर 12 का वर्स 1 से शुरू हो जाएगा। उसका बाद वर्स 1 से आप पढ़िए, आपको मिलेगा बिलीवर ऐसा होना है, वैसा होना है, एक दूसरा को प्यार करना, ये सब कुछ मिलेगा। और ये वर्स जो है स्पेशली जो आज यहां में कोट किया है वर्स 11, इसका ठीक इमीडिएट वर्स 10 में क्या बोला है पॉल, जो लव डज नो हार्म टू अ नेबर, देयरफॉर लव इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। उसका बाद वर्स जाता है एंड डू दिस। ओके, ये वर्स को हम अभी खोले, ये करेगा, प्लीज मेरा साथ फॉलो कीजिए। यहां में पॉल अभी बिलीवर का प्रैक्टिकल काम को बता रहे हैं। अब लोग यीशु मसीह से माफी मिलने वाला लोग, यीशु मसीह का अनुग्रह पाने वाला लोग, अभी आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसा निकलना है, वो बात को अभी बता रहे हैं। बताते हुए यहां में पॉल जो जिस पॉइंट को वर्स 14 तक है, हाँ ये पूरा मीनिंग जो जिस पॉइंट को यहां में पॉल दिखा रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का मोटिवेशन कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग। आज अब हम अच्छा से चर्च जाता है, क्यों? आगे हम बोला जाए अब घर में प्रोटेक्शन होने के लिए। इज दैट योर मोटिवेशन? क्यों ऐसे चर्च आप अच्छा से कर रहे हैं? कोई लोग का तो ऐसा भी नहीं होता, मालूम नहीं हम भी क्यों चर्च जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सो वी गो एज समवन गोस। और कुछ लोग क्यों चर्च जाते हैं? सो दैट मेरा बीवी लोग, बच्चा लोग, परिवार लोग शांति मिलने के लिए, वहां से मोटिवेशन को हासिल करता है। लेकिन पॉल जो है ना, ये पूरा वर्ष में जो मोटिवेशन इन लोगों को अच्छा जीने का मोटिवेशन जो नहीं, वहां से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, हम लोग जो यीशु मसीह को अपनाने वाला चर्च का बिलीवर्स लोग, हम लोगों का रिश्ता यीशु मसीह और हम लोगों का बीच में जो रिश्ता है, सिर्फ आपका आजकल में क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा रहेगा, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। ये सबको पार करके ग्लोरियस फ्यूचर में है। इसीलिए ये वर्ष में जहां से पॉल मोटिवेशन को हासिल करो सोचता है अच्छा जीवन जीने के लिए, सेकेंड कमिंग को, जब यीशु मसीह आएगा ना, यीशु मसीह आने वाला है, एनी टाइम ही विल कम। इसलिए यहां में जो आप यहां में मिलता है, फॉर नाउ सल्वेशन इज नियरर टू अस देन वी बिलीव्ड। ये पैसेज जो है ना, आप लोग, ये तो थियोलॉजी क्लास नहीं है इसलिए हम पर डिटेल नहीं बता सकेंगे। सल्वेशन में हम लोग 3 पार्ट देखता है ना, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में यीशु मसीह को अपनाने की वजह से हम लोगों को पाप का सजा से आज़ादी दे दिया। अभी हम लोगों के ऊपर पाप का सजा नहीं है यीशु मसीह को अपनाने का वजह से। और सैंक्टिफिकेशन में आज यीशु में रहने का वजह से पाप का रूल से आज़ादी देगा हम लोगों को। अभी सैंक्टिफाई दिन ब दिन होते रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, ग्लोरिफिकेशन, पाप का प्रेजेंस से ही आज़ादी दिला देगा। इसीलिए बिलीवर का असली ब्लेसिंग लोग, बिलीवर का असली खजाना जहां में छुपा हुआ है, वो सेकेंड कमिंग में है। इसीलिए हम लोगों का चर्च का असली मोटिवेशन, अच्छा जीवन जीने का मोटिवेशन जो है, हम अच्छा काम करने से ये मिलेगा, ये शांति यहां में नहीं रखना, क्योंकि ये लोग चेंज होते रहेगा। आप जैसे सोचते हैं रोज ऐसे नहीं मिलेगा। अब ठीक होना है सोचता है तो तभी ठीक नहीं होता है, हीलिंग नहीं होता है। अब जब मिलना है सोच रहा है तभी नहीं मिलता है। यहां में अपना मोटिवेशन का सोर्स को बनाने से चेंज होते रहेगा। लेकिन जिसका सोर्स जो है सेकेंड कमिंग में, और वो कभी भी हो सकता है, एमिनेंट बोलते हैं, एनी टाइम एनी प्लेस। न्यू टेस्टामेंट का फर्स्ट जनरेशन बिलीवर लोग ये मोटिवेशन के साथ उन लोग ईश्वर काम किया, ये मोटिवेशन के साथ अच्छा जीवन को बिताया। इसलिए उन लोग मरते होने के लिए, मरने के लिए भी हम परस मरेगा ऐसे भी हुआ है बोलता है बिलीवर लोग ना, आई विल गो फर्स्ट। हम लोग जैसे सिर्फ आज ईश्वर का साथ बिजनेस कर रहा है, जैसे रिलेशन नहीं रखता है, बिलीवर्स लोग बहुत लोग ऐसे रखता है। उसको यीशु मसीह में इंटरेस्ट नहीं है, यीशु मसीह में क्या लाभ लॉस मिलेगा, हम ऐसा देगा ऐसे मिलेगा, वो हमें इंटरेस्ट है सिर्फ। नो, वो मोटिवेशन जो आदमी को चेंज कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह चंगाई देता है,
लेकिन चंगाई जो आपका मोटिवेशन होने से, चंगाई होता है इसलिए हम ईश्वर काम करेगा, ऐसा होते रहने से याद रखिए रोज चंगाई नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो आपको सबमिट नहीं करेगा, आप करना पड़ेगा यीशु मसीह को सबमिट ना। काम सक्सेस होता है, इसको मोटिवेशन आपका सोर्स बनाने से। कभी कभी जानबूझकर ईश्वर आपको काम को सक्सेस होने नहीं देता है, तो आपको बनाने के लिए, हमको बनाने के लिए हिब्रू 12 में बोला है ना, हम लोगों को डिसिप्लिन भी करेगा बोला है। तो ये सब मोटिवेशन लोग चेंज होगा, जिसको हम लोग सोर्स बनाएगा, जहां जिसको सोर्स बना के इसलिए हम ईश्वर काम करेगा। बट ओरिजिनल बिलीवर्स लोग, जिसका बहुत मैच्योर, बहुत थियोलॉजिकली साउंड बिलीफ सिस्टम में हम लोगों का मोटिवेशन जो अच्छा जिंदगी जीने का, यीशु मसीह में रहने का, दैट इज इन द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। वो आएगा, वो आ रहा है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि न्यू टेस्ट रेवलेशन में जीसस विल कम नहीं बोला जाता, जीसस इज कमिंग, ऑलरेडी निकल गया। जैसे ऐसे बैठ के ही विल कम, ऐसे भी नहीं है, ही इज कमिंग, आई एम कमिंग, आ रहा है। एनी टाइम वो आ सकता है। अगर सोचिए 2000 साल पहले बिलीवर्स लोग ये मोटिवेशन का साथ उन लोग जी रहा था, तो हम लोग तो और भी करीब है, तो सेकेंड कमिंग का हम लोग तो और भी मोटिवेटेड होने, जितना आज धनी होने से भी, सब कुछ होने से भी। इसलिए हम एक जगह में बोला है, कहीं फ्यूनरल में स्पीकर था, हम वहां वो बात बोलना पड़ गया वहां में। एक बीमारी भी अगर उसका जीवन में यीशु था बोलने से वो हेवन जाएगा, लेकिन एक तंदुरुस्त आदमी भी यीशु मसीह का बिना वो नरक ही जाएगा। अब हीलिंग हुआ है बोल के अब हेवन जाएगा ऐसा नहीं है, अब बीमार है बोल के नरक जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नहीं होने से तो नहीं जाएगा हेवन। सो वेयर इज आवर मोटिवेशन, कहां सोर्स कहां में है? यहां में इसका, अगर इसको हम एक बड़ा आई डोंट नो थीम बोलेगा ना क्या, एक तो बड़ा टाइटल देना है बोलने से, वेकअप कॉल होना था ये वर्ष, जो वेकअप कॉल जैसे। इसलिए यहां में ऐसा बोला है, हम इसको न्यू NIV से पढ़ेगा हम। एंड डू दिस अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट टाइम, द आवर हैज ऑलरेडी कम फॉर यू टू वेक अप फ्रॉम योर स्लम्बर, because our salvation is nearer than we first believed. 12 में बोला है, the night is nearly over. Night is nearly over मतलब ये दुनिया का राज खत्म हो रहा है. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So ये पैसेज लोग में जहां से पॉल जो मोटिवेशन को ले रहा है, वो जो है सेकेंड कमिंग तक नजर रख के। माँ लोग, यूथ लोग, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो विश्वास, जो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है ना, काम, सक्सेस, ये शांति, वहां तक लिमिट मत रखिए, पार कीजिए इसको। सी बियॉन्ड देन दिस, इससे आगे देखिए। माई लॉर्ड इज गोइंग टू कम, वो आने जा रहा है। यस, ही इज कमिंग, 100% ही विल कम, वो आने जा रहा है, सब कुछ खत्म हुआ। ये मोटिवेशन होना है अच्छा जिंदगी जीने का। दैट शुड बी द आवर मोटिवेशन। प्रेज द लॉर्ड। पहला बात यह है। दूसरा बात, ठीक वर्ष का शुरू कोई अभी बोलेगा। दूसरा बात जो ये है, वह दो दिया है, विच मीन्स उसमें आगे में कुछ था, और वो ये है कि एंड डू दिस अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट टाइम। आप लोग बाइबल खोला है, जो बाइबल खोला है प्लीज देखिए। फर्स्ट में क्या बोला है? एंड डू दिस। डू दिस मतलब एंड बोला है तो पीछे का वर्ष से कनेक्टेड है। उससे वर्ष में क्या बोला था? प्यार करो बोला था। अच्छा काम क्या क्या करना है पूरा लिस्ट बताए। डू दिस, इसको करो। उसका बाद बोला है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट टाइम। ओके, ये पार्ट को हम बोलेगा। ग्रीक भाषा में टाइम का दो मीनिंग है। टाइम जब बोलते हैं दो हिसाब से बात। एक टाइम जो है आज मंडे है ना ट्यूसडे है, उसको बताने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात को बताने के लिए। एक टाइम जो है वो
माहौल को बताने के लिए। तो यहां में जो ग्रीक भाषा यूज हुआ है वो जो माहौल का बताने के लिए, यहां में बोला है अंडरस्टैंडिंग द टाइम। जब पोल बोल रहा है, इसको हम रिसर्च करके बता रहे हैं आपको, इसमें ये एरिया को कवर कर रहा है। पोल जो बोल रहा है कि जानो, पहचानो जिस दुनिया में आप जी रहे, देखो, पहचानो, समझो ये लोगों का कितना दुनिया में खराब चल रहा है, उसको देखो, इसका खतरा को समझो, अंडरस्टैंड दिस। और हम बहुत अच्छा लगा पार्ट जो ये है कि ये वर्ड में ये मीनिंग भी इंक्लूड होता है कि अपॉर्चुनिटी को भी देखो, इट इंक्लूड्स दैट। अपॉर्चुनिटी को देखो, अच्छा काम करने का अपॉर्चुनिटी को देखो, देखो ये दुनिया कितना खराब हो गया, होश में आओ। इसीलिए उसका फर्दर अलग से आगे सेंटेंस लुक में बोला जागो, सोने वाला लोग जागो। पोल ऐसा बोला, जाग नहीं सकेगा नहीं देखने से, देख के जागो बोल रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ये दुनिया जो है आर्टिफिशियल होते जा रहा है, पाप जो है बढ़ते जा रहा है, शैतान जो है बहुत एक्टिव हो रहा है। शायद सेकेंड कमिंग बहुत नजदीक हो गया, इसीलिए अच्छा, शैतान का काम ये दुनिया में बहुत एक्टिवली अभी चल रहा है। ये हर कोई बोलता है, इवन स्क्रिप्चर विल से। कैसा मालूम होता है शैतान का काम चल रहा है बोल के? बोलिए, कोई बता सकेगा? शैतान तो ये सिंह लेके ये घूमेगा नहीं, तलवार। वो इंग्लिश फिल्म का मूवी, इंग्लिश मूवी लोग का भूत जैसे, तो ज़ोंबी, क्या व्हाट वी सेड इट, ज़ोंबी, आई डोंट नो, ऐसा बन के तो नहीं घूमेगा यहाँ में। कैसा घूमता है बोलिए? क्या काम कर रहा है? उसका हाईएस्ट सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है, हम बिब्लिकल एनालिसिस देके बता रहे हैं। शैतान जो है अभी सबसे एक्टिव ये समय में काम कर रहा है, हम लोग जानना है, उसको पहचानना है। जानिए, शैतान जब कभी भी करता है वो हर चीज को हम लोगों का सामने में लाएगा जो ईश्वर का जगह को लेगा। Who will take the place of God in your life? ईश्वर और आप दोनों का बीच में जो रिश्ता है, that's a secret। इंग्लिश में सेक्रेट और सीक्रेट है ना, सीक्रेट मैंने गुप्त, सेक्रेट मैंने होली। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सेक्रेट है ईश्वर और आप दोनों का रिश्ता जो बहुत पवित्र है, होली है। इस बीच में कोई नहीं आना है, जब कोई आएगा तो उसको मूर्ति पूजा बोलते हैं। तो शैतान जो ये बीच में ही किसी को लाना है, दैट इज वाई आप लोग बोलिए ईश्वर का जगह को ले रहा है ना नहीं ले रहा है? बहुत सारा चीज जो हम लोग देखता है, जो सुनता है, जहां समय बिताता है, ईश्वर के लिए हम लोगों का पास टाइम नहीं होता है, दूसरा चीज के लिए टाइम तो बहुत होता है। इसलिए एक पास्टर जो सीनियर पास्टर एक बहुत अच्छा से वो बोला है, आप जब बोल रहे हैं आपका पास टाइम नहीं है, आप ये बोल रहे हैं कि ये मेरा लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। बिकॉज जिसको आप इंपॉर्टेंट सोचता है उसके लिए टाइम निकालता है, यू हैव ए टाइम फॉर दैट। जिसको आप प्रायोरिटाइज करता है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सोचने वाला को, सब चीज को मिला के भी उसके लिए टाइम निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसको आप सबसे इंपॉर्टेंट सोचता है और उसके लिए टाइम नहीं है, वो नेचुरली नहीं है। ईश्वर का जगह को कोई और ले रहा है हम लोगों का लाइफ में, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है। नो इट, नो द टाइम, समय को पहचानिए, अंडरस्टैंड इट। आया में जगह को ले रहा है। ईश्वर को हम सबसे प्यार करेगा सोचता है तो अलग चीज ज्यादा अट्रैक्टिव है ईश्वर से ज्यादा। हम बहुत होली लाइफ जिएगा सोचता है तो और भी हमें ऐसा हमको दिखा रहा है, पूरा दुनिया जो हमको दिखा रहा है, ऐसा जियो ना, ऐसा जियो ना, ऐसा करो ना, लिव इन रिलेशनशिप में रहो ना, ऐसा करो, इतना ऑफर कर रहा है वर्ल्ड, जो दुनिया, जो उस दिन हम सेमिनार में बता रहा था ना, वर्ल्ड का साथ फाइट करता है। सो वर्ल्ड ऑफर कर रहा है। सी, Satan will do anything to take the place of God in our lives. Know the time, समय को पहचानो बोलने ला जो ये है, पहचानो क्या हो रहा है दुनिया में। उसके बाद बोले मत सो, उठो अभी, not time to sleep but to wake up। दूसरा बात, प्लीज सब ध्यान से सुनिए ना। Can I take few minutes more? I'm so sorry, मैंने बात ये हो गया थोड़ा सा। The second part is this.
verse 12. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. प्लीज ये बात को अभी सब लोग हमको देखिए, आप लोग यहां में बोला है सो के उठो, स्लम्बर जो सो के बैठा है, असली का सोने वाला को नहीं बोल रहा है, स्पिरिचुअली जो सो गया, चर्च भी आ रहा हो सकता है, लीडरशिप में भी हो सकता है, लेकिन सो गया हो सकता है, पॉसिबल है। स्पिरिचुअल आवाज को सुनने का टाइम नहीं है, सिर्फ बदन ही चर्च में है, बदन ही हम मिनिस्ट्री कर रहा है, हो सकता है हम भी होता है, अब भी हुआ होगा, हम लोग ईमानदार होने से सब बताएगा। वी ऑल गो थ्रू दैट। बाइबल बोल रहा है नहीं मत सो, अभी जागो। जागते समय में उसका बात बताया, या में नाइट जो रात जो ढलने वाला है, मीनिंग ये दुनिया का टाइम खत्म होने वाला है, सुबह जो ऑलमोस्ट आ गया है, मीनिंग द ग्लोरियस मोमेंट, जीसस क्राइस्ट का रिटर्न जो क्लोज हो गया, उसका बात बोला है। इसीलिए जो जाग के उठने वाला लोग, हटाओ खराब चीज लोगों निकाल दो, कपड़ा को खोल दो, वो खराब कपड़ा को, और नया कपड़ा ले लो। इसलिए दो बात बताए, वन इज टू रिमूव, टू पुट ऑफ, एंड व्हाट इज टू पुट ऑन। दो चीज को सेपरेटली बताया। इसलिए सुबह उठने का साथ साथ हम लोग कुछ कपड़ा को खोल देता है, उसका बाद नया कपड़ा लगा के जाता है, यही वाला बात को बोला है। ओ उठेगा, कुछ चीज हटा जो जिसको आप, जैसे ही आपको आज ईश्वर का वचन मिल रहा है, आप जाग सका, दिस इज समथिंग, हम सीरियस होना चाहिए था, जाग गया आप। हम इसको जब रिसर्च कर रहा था, एक आदमी बहुत अच्छा बात बोला है, असली में भी सोते समय में सुबह सुबह तो बहुत लेट उठने वाला ज़्यादा होगा यहाँ में, सब स्माइल कर रहा है, तो थैंक यू। सोने उठने का साथ साथ अब कुछ करना है, नहीं करने से वापस होएगा बोलते हैं, राइट है ना रॉन्ग है बोले। सुबह उठने का साथ साथ उठ जाता है तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं करके ऐसे बैठने से फिर वापस ठंडा है कंबल सा, इट विल बी लाइक दिस। इसलिए यहां में पोल जब लाए, हाय डू नॉट स्लीप, स्लम्बर लो, सोने वाला लो, उठो, उठने का बाद निकालो कुछ नया, पहनो कुछ, इमीडिएट डिसीजन है इसमें। इसीलिए जैसे ही हम लोग एहसास करता है कि ईश्वर हमको जगा रहा है, नया बात बताया, गॉड हैज स्पोकन टू मी, ये बात हम पहले से जानता था लेकिन आज ईश्वर हमको बात किया, अब एहसास करता है, तो जल्दी जल्दी कुछ चीज है जिसको आप एहसास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हटा दो, और जल्दी डिसीजन ले लो कि अभी से हम ये करेगा, हम ये करेगा, अच्छा करेगा। इट्स लाइक दिस। इसलिए बोलते हैं रिग्रेट होना जो ठीक है, लेकिन रिपेंट भी होना पड़ेगा। रिपेंट होना भी ठीक है, रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। रिग्रेट मतलब हम क्यों ये जगह गया था हो, आई रियली फील सो सॉरी फॉर दैट। रिग्रेट, क्यों हम ऐसे किया है, इतना तक ही बहुत लोग होता है, क्यों हम वो जगह गए हो, फिर वही जगह जाएगा, वो बात कर करके वही सेम बात को बोल बोल के विल गो देयर, विल टेक दैट। रिपेंट में क्या होता है, इसलिए रिग्रेट समय में नेगेटिव रिलीज होता है बोलते हैं, इसलिए रिग्रेट होने, सिर्फ रिग्रेट तक लिमिट होने वाला आदमी जो सुसाइड भी करता है। इसलिए हम क्यों ऐसे किए, क्यों वो खराब काम किया, क्यों किया, रिग्रेट तक होने वाला आदमी कभी वो रास्ता तो वही है, लेकिन वहां लिमिट होने से नेगेटिव रिलीज होता है। उसका बाद और एक स्टेप आगे आएगा, रिपेंट में हम क्यों किया, अभी से हम नहीं जाएगा, दैट इज रिपेंटेंस, उसमें पॉजिटिव रिलीज होता है। इसीलिए जब आप कभी भी ऐसा डिसीजन लेते समय में आप एक ताकत महसूस करता है कि नहीं, एक हल्का महसूस करता है व्हेन यू डिसाइड समथिंग न्यू, ओह हम नहीं जाएगा अभी से वहाँ। लेकिन दूसरा, अभी थर्ड क्वेश्चन अभी तक है, तो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा वहाँ, तो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। वी कॉल इट रिप्लेसमेंट। तब तो हम अभी से बाइबल पढ़ेगा, या हम और भी प्रेयर लाइफ में डूब जाएगा, और भी हम ईश्वर को जानने में। रिप्लेस नहीं करने से, सिर्फ रिपेंट होने से भी वापस जाएगा रे। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी आज ईश्वर का वचन सुन रहा है, यूथ लोग जो भी, वेक अप, जागिए स्पिरिचुअली, गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू। याद रखिए, ईश्वर को आपका और मेरा जरूरी नहीं है, हमको उनका जरूरी है।
मेरा बिना ईश्वर ऐसा रह सकता है, कुछ लॉस नहीं उसके लिए, लेकिन उसका बिना हम लोग नहीं रह सकेंगे। वी नीड हिम। जब ईश्वर हम लोगों को अपना पास बुलाता है तो वो उसका अपना फायदा के लिए नहीं, मेरा फायदा के लिए बुलाता है, तो आपका लिए बुलाता है। He doesn't need us, we need him. Praise the Lord. Last part, verse 14 में बोलता है, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Hello? Hello? Is it audible? Hello? हेलो चेक। यहाँ में बोला है कुछ, यहाँ में यीशु मसीह को पहन लो, ले लो, कुछ अलग वर्जन में मिलेगा पुट ऑन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को ले लो। ये पार्ट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करके अभी खत्म कर देगा ना। अच्छा, आप लोग बोलिए यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है वो? मेरा बेटा हमको पूछा है यीशु मसीह कहाँ है, हमको जीसू बोलो, हम बोले आपका दिल में बोला है, तो कपड़ा खोल के मारता है, मारेगा। सो वेयर इज जीसस? इज ही इन यू? आपका अंदर में यीशु मसीह है? सही बात है, राइट है। यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंस है, सो ही इज इन अस फॉर श्योर। और पवित्र आत्मा इन द स्पिरिट ही इज इन अस नाउ। ही इज नॉट जस्ट विथ अस बट इन अस। यीशु मसीह हमारा अंदर में है, ठीक है। अगर यीशु मसीह मेरा अंदर है तो फिर हम क्यों बुलाते हैं उसको? यीशु आजा आजा क्यों बुलाते हैं? Why we call him? ये जो पॉल जो जिस ऑडियंस को बोल रहा है यहाँ में, ये नॉन क्रिश्चियन को नहीं बोल रहा है, यीशु को अपना ऐसा नहीं बोल रहा है, क्रिश्चियन लोगों को एड्रेस कर रहा है, रोमन क्रिश्चियन लोगों को बोल रहा है ना, जो जिसका पास ऑलरेडी यीशु मसीह है उसको बोल रहे हैं यीशु मसीह को ले लो। अरे ऑलरेडी यीशु मसीह इज इन अस। ओके, इसको हम शॉर्ट कर देगा अभी ना, टाइम जा रहा है, बट कीप दिस इन माइंड। यीशु मसीह को हम लोगों का अंदर जरूर है, लेकिन यीशु मसीह को पहनने का अर्थ जो ये होता है कि आप यीशु मसीह जैसा बनते जाओ, बोल रहा यीशु मसीह जैसा होते जाओ, उसको जगह देते जाओ। आपका अंदर में है, लेकिन आप में राज करने के लिए आप मौका पूरा नहीं देते, राइट? मेरा ईश्वर हमको 3 बच्चा दिया है, तो जैसे कि अभी मेरा बेटा हो गया, बेटी, अगर हम ईमानदार से बताने से, जब जन्म होता है हम लोग इतना प्यार नहीं करते हैं, क्या झूठ बोलेगा ना। जन्म होने का साथ साथ तो बच्चा है इतना ही सोचते हैं, माई सन माई डॉटर, जस्ट दैट। कहीं घूमने जाने से भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो मेरा 3rd बच्चा जो अभी बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उस दिन भूल गया था वो है बोल के भी 2 बच्चा ही ये सोच रहे। समटाइम इट हैपन्स। हम लोग कुछ बोलेगा, इतना अभी छोटा है, अभी जन्म हुआ है, फिर भी ये रोएगा, बहुत प्यार करता है। हम थोड़ा उसको इतना असली नहीं लगता है, क्योंकि ये मेरा घर में जरूर आया, लेकिन मेरा जीवन में अभी तक नहीं आया अच्छा से, क्योंकि इसको हम अभी तक समझा ही नहीं, जगह ही नहीं दिया मेरा जीवन में। मेरा जीवन में जगह देने के लिए इसको हम जानने से ये जगह लेने शुरू करेगा। द मोर आई नो माई चाइल्ड, ही विल टेक प्लेस इन माई लाइफ, ऑल्दो ही इज ऑलरेडी इन माई हाउस। तो अभी मेरा बच्चा को आप देखते रहे, जानते रहे, उसका स्माइल को देखने शुरू हो गया। अरे अबू अबू बोल के खेदाने वाला उसको देखने शुरू हो गया। अरे पकड़ने के लिए कुश्ती खेलता है उसका, हम कुछ लाएगा तो चीना चीनी। व्हाट हैपेंस? अभी तो कहीं जाने से बहुत याद आता है, बिकॉज उसका स्माइल, उसका बातचीत, उसका सब कुछ को देखने का दिन ब दिन
मेरा दिल, मेरा जीवन में वो जगह, मेरा बच्चा जो लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। पहले से घर में था मेरा, लेकिन जगह तो धीरे धीरे ले रहा है। और जगह भी किस लिए ले सक रहा है? हम उसको जानने में बढ़ रहा है ना। आई एम ग्रोइंग इन नोइंग, प्रेज द लॉर्ड। चैलेंज कर रहा है जितना भी यूथ आया यहाँ में, जितना लीडर्स है, वो माँ लोग है, यीशु मसीह को जानने में हम लोग बढ़ते रहना। दैट्स व्हाट 2 Peter chapter 3 verse 18 में बोला है, but grow in the grace, in the knowledge of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को जानने में बढ़ते रहना है। जो उसको जानने में बढ़ते जाएगा, वो उसको प्यार करने में बढ़ेगा, वो जगह लेने शुरू करेगा, और वो व्यक्ति, वो आदमी दिन ब दिन यीशु मसीह जैसा लगेगा उसको देखने के लिए। उसका बात करने का ढंग यीशु मसीह जैसा होने लगेगा, कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा होने लगेगा। इसीलिए किसी को जब हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरा लाइफ में आने का, वो मीनिंग जो ये है कि आई बिकम मोर लाइक हिम, उसका जैसा होते जा रहा है, वो जगह लेते जा रहा है। और ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है? उसको हम जानने में बढ़ते जा रहा है, तो वो जगह लेते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Shall we all stand on our feet? I am so sorry. हम आधा घंटा बोला, लेकिन I was driven, so extremely sorry for that. हम लोग सब एक प्रार्थना करेगा साथ में ना। उसके बाद फॉर्मर लीडर्स लोगों के लिए भी, did you say that? Okay, okay. But एक बार हम लोग सब मिलके let us open our mouth. हम लोग कोई एनोइंटिंग सर्विस क्या ऐसा करने नहीं जा रहे, बट एक सिंसियरली कमिट कीजिए, यस लॉर्ड, अब हमको जगाया है ना। मेरा जो मोटिवेशन, अच्छा जिंदगी जीने का मोटिवेशन से सिर्फ यहाँ से मिलना है, यहाँ से शांति, ब्लेसिंग, इतना में लिमिट नहीं है। आप वापस आने जा रहे हैं, आपका इंतजार में हम जी रहे हैं, सो हम रेडी हैं। यहाँ से हम मोटिवेशन को ले रहे हैं अच्छा जिंदगी जीने का। फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकेंड में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जागने का बाद जैसे ही एहसास होता है कि हम जाग गया, दुनिया को, टाइम को पहचान लिया, शैतान का चाल को मालूम हो गया, शैतान ईश्वर का जगह को लेने के लिए कर रहा है हम लोग का लाइफ में, दूसरा चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा रहा है ईश्वर से ज्यादा। इसको समझने का बाद जैसा एहसास हो रहा है, पुराना चीज को हटा के नया, मीनिंग यू डिसाइड, रिपेंट ऑफ समथिंग एंड रिप्लेस इट। द लास्ट बात जो बोला है, अभी यीशु मसीह को जानने में समय बिताओ, बी मोर लाइक जीसस क्राइस्ट। ये 3 पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हुए हम लोग सब मिलके प्रेज द लॉर्ड बोलेगा और प्रेयर करेगा।